students of class 3rd. Welcome to your English class. This is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. So children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9 of your Roots and Wings, and the name of the chapter is, yes, that is an exciting cricket match. Alright? Yes. So today we are going to start this chapter. Children, this is the part 1 in which I will explain the story of this chapter, that is chapter number 9, and in the next part, that is part 2, I will discuss the exercises. Alright? Okay. So before starting the chapter, there is a short exercise given, that is get set. A match, question number A, match the pictures of the given cricketers with their names. Here some of the pictures are given, okay, and the pictures of the cricketers are there. Alright? Yes. And you have to match the names of them. सी फर्स्ट वन, यहाँ क्रिकेटर्स के पिक्चर दिए गए और आपको उनके नेम से मैच करना कौन सा क्रिकेटर कौन है. ऑलराइट, ओके. सो सी द फर्स्ट वन, बेन स्टोक्स. देन वेयर इज द पिक्चर ऑफ बेन स्टोक्स? ओके, लेट मी मैच इट. जस्ट वेट. यस, दिस इज द Ben Stokes. This is your Ben Stokes. This is the picture of Ben Stokes. Second is Chris Gayle. Okay, this is your Chris Gayle. C. Bhuvaneshwar Kumar. This is your Bhuvaneshwar Kumar. Anglo Matthews. This one is your Anglo Matthews. All right. Okay. Kuldeep Yadav. E. This is your Kuldeep Yadav. And Virat Kohli. This is your Virat Kohli. Fine. All right. Okay. So if you want to do this, then just pause the video and just start doing. Now shall we move to the story? Okay. Okay. All right. So come to the story. Come to the page number 113 of your Roots and Wings. Read and enjoy. Cricket is the most popular game in India. People of all ages get glued to TV when an important cricket match is shown live on a sports channel. Here is a description of an imaginary 2020 cricket match played between India and Australia. Read the interesting story of the match. Children, there is a story, okay, and this story belongs to the cricket match. This is an imaginary story, okay, this is not a real story. It is just an imaginary story जिसमें आपको दिखाए गए 2020 क्रिकेट मैच के बारे में जो किन के बीच खेले गए, टू कंट्रीज, एंड दिस आर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑलराइट, ओके. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच को दिखाए गए और आप देख सकते हो. नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ. रवि एंड कृष्णन रीच्ड द फिरोज शाह कोटला स्टेडियम एट 4 o'clock in the evening. Okay, just wait. Before starting the chapter, let me discuss the word meanings. All right. So come to this box. First word is given crowd. Crowd means a large number of people, means gathering. जैसे अगर लोगों की भीड़ है, there is a collection of people, then that is called a crowd. ऑल राइट. जैसे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, दैट इज़ योर हर्ड. ओके, इस तरह से कलेक्टिव नाउन कह सकते हो आप. इसी तरह से जो अगर लोगों की भीड़ है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज क्राउड. सबके अलग अलग नेम होते हैं कलेक्टिव नाउन के. अगर वो कलेक्टिव नाउन ऑफ फ्लावर्स है, जैसे कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज बुके. फाइन, ओके. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, देन दे विल बी कॉल्ड एज आर्मी. इस तरह से इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देन दैट विल बी कॉल्ड एज क्राउड. बैनर. बैनर मीन्स अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ मटेरियल विद अ मैसेज और स्लोगन. आप रोड पर देखे होंगे कहीं ना कहीं हर जगह बैनर लगे होते हैं ना, जिस पर क्या लिखे होते हैं, कुछ मैसेज लिखे हो सकते हैं. एक लंबा सा बैनर, एक लंबा सा होता है पोस्टर की तरह, ठीक है, उस पर कुछ मैसेज और कुछ स्लोगन लिखे होते हैं. स्लोगन मीन्स अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वेइंग अ मैसेज. स्लोगन हो गया, जैसे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए हैं, लिव एंड लेट लिव, इस तरह से कुछ है, जियो और जीने दो, ये सब जो भी स्लोगन, ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करे, कुछ मैसेज आपको दे, दैट विल बी कॉल्ड अ स्लोगन. ऑक्यूपाई, टू टेक अप स्पेस, किसी चीज़ को क्या करना, कब्जे में कर लेना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्यूपाई. टॉस. टॉस आप जानते हो, जब आप कोई गेम खेलते हो, आप खुद भी खेलते हो, तो आप लोग टॉस करते हो ना. अगर आपने टीम में बट रखा है तो आप टॉस करते हो कौन पहले खेलेगा. क्रिकेट आप खेले होगे घर पर या फिर अपने स्कूल में, तो आप लोग अगर दो टीम है तो क्या करते हो आप लोग, टॉस करते हो कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन फिर ये बॉलिंग करेगा. तो ये टॉस के थ्रू आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हो. फील्डिंग, टू एक्ट एज अ फील्डर ऑन द प्लेइंग फील्ड. जो फील्डर जो काम करते हैं फील्ड में रहकर,
ठीक है, बॉल को कैच करना, ये सारे जो देखना, तो वो क्या कहलाता है, फील्डिंग करना कहलाता है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अगेन सम वर्ड्स आर गिवन देयर, वेट। In page number 114, sportsman spirit. Sportsman spirit means a person who plays without caring about winning or losing. जैसे आप टीम में, आपका जो टीम है, आप अपने टीम के अलावा दूसरी टीम अगर आप अच्छी कर रही हो या फिर कुछ अच्छा वो बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आप उसके लिए भी अच्छा सोचते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि अगर उसके लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप ये नहीं सोचते हो कि अगर वो जो मेरा अपोजिट पार्टी है, वो मेरा अपोनेंट है, तो मुझे नहीं करनी चाहिए उसके लिए अप्रिशिएट। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसके लिए अप्रिशिएट करते हो अपने अपोजिट वाले टीम के लिए, तो क्या होता है, वो कहलाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, आप ये उस वक्त सोचना छोड़ देते हो कि मैं हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ, बस आप जो चीज़ मतलब कि प्रेज़ करने लायक है, आप उसको प्रेज़ करते हो, अप्रिशिएट करते हो। अप्रिशिएट अगेन, टू वैल्यू और रिगार्ड हाईली, मतलब किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, यू कैन से, ओके, या टू वैल्यू इट, उसको वैल्यू देना। चीयर, अ शाउट ऑफ इनकरेजमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। चीयर मीन्स क्या होता है, आप जोर से चिल्लाकर किसी को इनकरेज करते हो। हाँ, जैसे कि आपकी अगर आप इंडियन टीम हो, तो आप अपने टीम को क्या करते हो, अपने उसको इनकरेज करते हो, येस यू कैन डू इट, येस वेरी गुड, इस तरह से जो चिल्लाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड चीयर, जो ऑडियंस वहाँ बैठे करते हैं स्टेडियम में। फाइन। कैफेटेरिया, अ लंच रूम और अ डाइनिंग हॉल इन अ स्कूल और स्टेडियम। स्कूल या स्टेडियम में कोई लंच रूम होता है, ठीक है, अगर आपके स्कूल में है तो फाइन, या फिर कहीं कहीं होते हैं ये डाइनिंग हॉल, ठीक है, वहाँ जहाँ आप खाना ले जाकर काउंटर पर खा सकते हो, काउंटर से, और टेबल लगी होती है, कैफेटेरिया, ठीक है, आप वहाँ खाना खा सकते हो। ये छोटे बच्चों के स्कूल में नहीं, बड़े बड़ों के होती है, ये सीनियर्स को ये चीज़ अलाउ किए जाते हैं। अंपायर, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू वॉच अ गेम एंड मेक श्योर दैट रूल्स आर नॉट ब्रोकन। अंपायर किसे कहते हैं, जो एक मेन वहाँ पर होता है, जो ये जज करता है कि क्या जो भी टीम है वो सही खेल रही है, नहीं कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रही है, इन सारी चीज़ को जो देखना, जिसका ऑब्जर्व करने जिसका काम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अंपायर। फाइन। हॉल्ट मीन्स स्टॉप, रुकना, ठीक है, जैसे स्टेशन जो होते हैं कहीं पर, जहाँ पर ट्रेन भी अगर कहीं पर रुकती है, तो उसे भी एक हॉल्ट कहा जाता है। कहीं कहीं आप देख रखे होगे, वहाँ पर लिख रखा होता है हॉल्ट। हॉल्ट मतलब स्टॉप होता है, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटिंग, ओके, जिस इसको आप देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो। नाउ कम टू द पेज नंबर 113। नाउ शैल वी स्टार्ट द पैराग्राफ, ओके। Ravi and Krishnan reached the Firoz Shah Kotla Stadium at 4 o'clock in the evening. They were surprised to see a huge crowd of people over there. See, the name of two boys are given, that is Ravi and Krishnan. दो बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, Ravi and Krishnan. And where are they going? Yes, they are going to watch the match. And they have reached the Firoz Shah Kotla Stadium. There is a stadium whose name is Firoz Shah Kotla Stadium. Fine. As you can see in the picture also, see. Here is the name written, okay, yes, and here are three boys, these are friends, ये तीनों दोस्त हैं, इनमें से भी दो का नेम मेंशन कर रखा है, तीसरे का आगे आपको मिलेंगे। फाइन। एंड दे आर गोइंग टू वॉच द मैच, ओके। एंड व्हाट इज़ द टाइमिंग, दैट इज़ 4 o'clock। ये शाम के 4 बजे जा रहे हैं क्या, मैच देखने, कहाँ, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। और वो लोग क्या थे, सरप्राइज थे, मतलब देखकर बड़ा आश्चर्य थे, क्यों, बिकॉज देर वॉज वेरी मच ग्रुप ऑफ पीपल, देर वॉज वेरी मच पीपल ओवर देयर, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे, बहुत सारे लोगों की भीड़ थी वहाँ, एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। जैसे ये दो बच्चे जा रहे हैं रवि एंड कृष्णन देखने मैच, उसी तरह और भी तो लोग देखने जा रहे थे ना। They were going, sorry, they moved slowly towards its entrance gate. They were going to watch an exciting cricket match between India and Australia. और ये लोग बड़ा धीरे धीरे जा रहे थे किसकी तरफ, एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस मीन्स जहाँ से आप इंटर करोगे, ओके, इंटर से बना एंट्रेंस, तो जो एंट्री वाली जो गेट होती है, जैसे ये लोग इंटर करते हैं स्लोली धीरे धीरे। एंड दे वर गोइंग टू वॉच एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच, अभी मैंने मेंशन किया ना, वो मैच देखने जा रहे थे, एंड दैट वाज ऑफ क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे ये लोग। और जो किन के बीच थी, दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यस। ये जो मैच होने वाली थी, वो दो कंट्रीज़ के बीच थी, दैट वाज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। Now we are coming to the next paragraph, that is paragraph number 2. Suddenly a man stood before them. He was selling banners and caps with slogans written in support of India.
उसके बाद वो क्या देखते हैं, अचानक से उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो क्या बेच रहा होता है, बैनर्स, कैप्स, ये सारे कुछ वो बेच रहा था, जिस पर वो क्या कुछ स्लोगन्स लिखा था। और वो स्लोगन किससे रिलेटेड था, वो जो इंडियन टीम है उनको इनकरेज करने के लिए था वो स्लोगन्स। ऑलराइट, या दैट वाज इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो देन सम बॉयज़ एंड गर्ल्स वर बिजी बाइंग देम, कुछ जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग बिना खरीदे ही जा रहे थे। आपने देखा भी होगा क्रिकेट मैच, अपने टीवी पर देखा होगा, टेलीविज़न पर देखा, या फिर लाइव भी देखा है अगर आपने, तो आप देखोगे जो ऑडियंस होते हैं वो कभी कुछ कैप लगाए रहते हैं या फिर रिबन जैसा वो हाथ में बांधे रहते हैं, है ना, या फिर कुछ वो बैनर्स लेकर लहराते हैं हवा में ऐसे करके। तो ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए होता है, ताकि आप ना अपने जो आप जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो उसको आप इनकरेज करने के लिए ये सब ले जाते हो, दैट आई एम विथ यू, ये आप शो करते हो कि आई एम विथ यू। फाइन, ओके। रवि सेड लेट्स गो एंड टेक आवर सीट्स क्विकली। इनमें से जो रवि है वो क्या बोलता है, हमें जल्दी चलना चाहिए और अपनी जो सीट है जल्दी से उसे लूटना चाहिए, ले लेना चाहिए, ओके, कैप्चर करना चाहिए। द सीट्स आर नॉट नंबर्ड सो लेट्स ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट्स एज क्विकली एज पॉसिबल, सेड कृष्णन। उसका जो दूसरा जो उसमें जो दूसरा बॉय है, दैट इज़ उसका जो दोस्त है रवि का, वो बोलता है कि जो सीट्स हैं उसमें नंबरिंग नहीं की गई है कि हाँ टिकट के अकॉर्डिंग जिनके टिकट पे जो नंबर है उनको उस सीट पे बैठना है। यहाँ क्या है कि सीट को ऑक्यूपाई करना है, मतलब कि कब्जा करना है। तो चलो जल्दी से, और हम क्या करते हैं, सीट्स को लूटते हैं जितना जल्दी हो सके। दे शोड देयर टिकट्स एट द गेट एंड वेंट इन। वो क्या करते हैं, टिकट को गेट पर दिखाते हैं, एंट्रेंस गेट पर, एंड देन वो अंदर घुसते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स द टू कैप्टन्स, अरुण फिंच ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड MS धोनी ऑफ इंडिया, केम फॉर द टॉस। ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपने टिकट लेकर जब अंदर जाते हैं तो कुछ मिनट के बाद ही फिर वहाँ दो कैप्टन आते हैं दोनों टीम की, ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की। एंड देन वो कौन कौन थे, आरोन फिंच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया का जो टीम से जो कैप्टन था वो था आरोन फिंच, और इंडिया का जो कैप्टन था दैट वाज MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ओके, ये दोनों कैप्टन आते हैं आगे और वो टॉस करते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा। तो इस टॉस में कौन जीतता है, ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस, जो ऑस्ट्रेलिया वो टॉस जीत जाता है। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि टू बैट फर्स्ट, जो टॉस जीता वो पहले बैटिंग करेगा, है ना। देन ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। सॉरी, मैंने शुरू में बोला था कि देवर 2 बॉयज़, नो ओनली देवर, सॉरी 3 बॉयज़ मैंने कहा रखा था, देर ओनली 2 बॉयज़, रवि एंड कृष्णन, राइट, या दीज आर 2 फ्रेंड्स ओनली। The beating, now come to the next paragraph. The beating of drums and shouting of the spectators filled the air with some kind of magic. जो उसके बाद फिर जो spectators means what? Those who are looking at the match, okay? Those who are seeing the match, जो दर्शक होते हैं और जो ऑडियंस होते हैं, they are called spectators, right? और वो क्या कर रहे थे कि जब ड्रम की जो बीटिंग होती है, ड्रम पीटने की आवाज़ होती है, शॉटिंग होती है लोगों की, ऑडियंस की, वो क्या होती है, ऐसे हवा में इतना ज़ोर का वो शोर शराबा हो रहा था। ओके, रवि एंड कृष्णन हैड नेवर बीन टू स्टेडियम बिफोर टू वॉच अ क्रिकेट मैच। जैसे आप जाओगे देखना ना, बड़ा शोर शराबा, बड़ा वो उसको इनकरेज करता है, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया को इनकरेज कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया को इनकरेज कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को वो चिल्ला चिल्ला कर वो स्लोगन बोलते हैं, ये सारे शॉटिंग वगैरह हो रहे थे, ड्रम्स की बीटिंग हो रही थी, मतलब एक अलग सा माहौल बन रखा था वहाँ पर स्टेडियम में। आप ना बस इमेजिन करते जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी, ओके। रवि एंड कृष्णन हैड नेवर बीन टू अ स्टेडियम बिफोर टू वॉच अ क्रिकेट मैच, इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। और जो रवि और कृष्णन है ना, ये फर्स्ट टाइम जा रहे थे स्टेडियम। एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं देखा है रियल लाइफ में स्टेडियम, मैं भी कभी नहीं गई हूँ रियल लाइव मैच देखने। सो अगर मैं भी जाती ना तो मैं भी इनकी तरह ऐसा ही बड़ा सरप्राइज रहती, रवि एंड कृष्णन की तरह, अरे ये क्या हो रहा है, अरे वाह, अरे वाह, मैं करती रहती, और अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इनके तरह ना मैं भी थोड़ा एक्साइटेड रहती। आई होप काश मैं भी जा पाऊँ कभी, होप सो। अगर आप लोगों ने में से किसी ने गए हो, कोई भी आप गए हो, देन जस्ट मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपने कभी लाइव मैच देखा है स्टेडियम में जाकर, देन जस्ट कमेंट मी डाउन, अच्छा लगेगा मुझे ये जानकर। ओके ओके, मैं चाहती हूँ ना, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँ नहीं, मैं आपसे जुड़ी रहूँ, कनेक्टेड रहूँ, ओके। मैं आपकी फ्रेंड की तरह रहूँ, ऐसा लगता है मुझे, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। आप मुझसे आप कुछ शेयर भी कर सकते हो कमेंट में लिख कर कि हाँ मैम, जैसे अभी क्रिकेट मैच की बात हो रही है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ओके ओके। Now, the Indian team came out for fielding and their supporters greeted them loudly.
जैसे बैटिंग तो कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब इंडियन टीम जो थी वो क्या करने वाली थी, वो फील्डिंग करने वाली थी, बॉलिंग वगैरह करेंगे ये लोग। और जो उनके जो सपोर्टर्स थे, जो इंडियन टीम के जो सपोर्टर्स थे, वो क्या कर रहे थे, उनको ग्रीट कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उनका वेलकम कर रहे थे। David Warner and Arun Finch came to bat first from the Australian team. Mohammad Shami started bowling for the Indian team. बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम तो जो टॉस जीत रखी थी तो ऑब्वियसली वो आएगी पहले बैटिंग करने। तो उनमें से कौन आते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से, डेविड वार्नर एंड अरुण फिंच आते हैं बैटिंग करने को। एंड देन इंडियन टीम से कौन जाते हैं बॉलिंग को, मोहम्मद शामी जाते हैं। ओके वो जाते हैं बॉलिंग करने को। ही बाउल्ड वेरी फास्ट, जो मोहम्मद शामी है उसने बहुत बड़ा तेज़ी से बहुत फास्ट बॉलिंग किया। All right, okay. Now we are coming to the page number 114. Just wait for a second. And David Warner hit the ball up in the air. The spectators shouted and clapped as it went out of the stadium. और जो बैटर था, जो बैटिंग करने वाला था ऑस्ट्रेलियन टीम से, डेविड वार्नर, उसने बॉल को इतने ज़ोर से हिट किया कि वो बाउंड्री के बाहर चली गई। जो ऑडियंस थी वो ज़ोर से चिल्लाई एंड देन दे स्टार्टेड क्लैपिंग आल्सो, उन्होंने तालियां बजाई। क्यों? बिकॉज फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। ओके और क्योंकि उसने इतना अच्छा बैटिंग किया कि सारी जो ऑडियंस थी वो शॉट करने लगी और क्लैपिंग करने लगी। रवि सेड व्हाट अ शॉट। जो उनमें से जो दो दोस्त थे रवि एंड कृष्णन, उनमें से रवि बोलता है व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, लुक एट फील्डर, लुक एट देयर फील्डर इज रनिंग टू कैच द बॉल बट ही जस्ट कैन नॉट रीच एनीवेयर नियर इट। बोलता है कि जो फील्डर है वो दौड़ रहा है बॉल को पकड़ने को, कैच करने को, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पा रहा है, नहीं पहुंच सका। बॉल जो वो क्या कर गई, वो बाउंड्री के बाहर चली गई। कृष्णन नॉडेड, इट वॉज ए गुड शॉट एंड डीड। नॉडेड मतलब होता सर झुकाना, हाँ हाँ ये सच में बड़ा अच्छा शॉट था। कौन बोलता है? कृष्णन बोलता है। इवन द बाउलर क्लैप फॉर डेविड वार्नर, और जो बॉलर था ना मोहम्मद शामी, इवन उसने भी वो क्लैपिंग की डेविड वार्नर के लिए, उसने भी उसे अप्रिशिएट किया। रवि सेड सी दैट्स ट्रू स्पोर्टमैन स्पिरिट, ही इज़ अप्रिशिएटिंग द प्लेयर ऑफ हिज अपोनेंट्स टीम। और जो रवि है उनमें से वो क्या बोलता है, देखो ये क्या है, दैट इज़ अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मीन्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि ऐसी क्वालिटी जो आप वहाँ पर ये नहीं सोचते कि मैं हार रहा या जीत रहा हूँ, या फिर वो मेरी जो टीम है वो मुझसे, मेरी अपोनेंट टीम है तो मुझे उनकी वो तारीफ़ या अप्रिशिएट नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना सोचना। ठीक है, यहाँ पर आप ये सब बिना सोचे क्या कर रहे हो, उसको इनकरेज कर रहे हो, उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, इट इज़ अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाई जो किसके लिए किया गया यूज़, मोहम्मद शामी के लिए। ओके या क्योंकि वो जो है ना अपनी जो अपोनेंट टीम उसके लिए वो अप्रिशिएट कर रहा था, तारीफ़ कर रहा था उसके बॉलिंग को, उसके बैटिंग को लेकर जो उसने बड़ा तेज़ हिट किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। After 15 overs, the Australian team scored 150 runs. David Warner was clean bowled in the 16th over. He waved at the cheering crowd and left the stadium. जब 15 ओवर्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो इंडियन टीम है उसने कितना स्कोर किया था, 150 रन उसने स्कोर कर लिया था 15 ओवर्स के बाद। एंड देन जो डेविड वार्नर था फिर वो क्लीन बॉल हो जाता है 16th ओवर में। ओके एंड देन उसकी चांस जो है वो चली जाती है। उसके बाद वो जाने से पहले क्या करता है, ही वेव्ड एट द चियरिंग क्राउड, मतलब जैसे आपने देखे होंगे ना क्रिकेटर को ऐसे वो बैट को ना हवा में ऐसे ऊपर की तरफ दिखाते हुए ऑडियंस की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, चियरिंग क्राउड की तरफ, और फिर वो स्टेडियम इस तरह से छोड़ता हुआ चला गया। Now come to the next paragraph. Steve Smith took the striker's position and played well. He and Finch added 40 more runs. उसके बाद कौन सा प्लेयर आता है, दैट इज स्टीव स्मिथ, वो आते हैं, उसने लिया पोजीशन एंड देन ही आल्सो प्लेड वेल। एंड उसके बाद स्टीव स्मिथ एंड जो फिंच है उन्होंने 40 मोर रन्स ऐड किया, मतलब 40 मोर रन्स और उन्होंने अर्न किया, कलेक्ट किया पॉइंट रन्स। एंड द एंड ऑफ 20 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 190 रन्स इन ऑल। जब उनके 20 ओवर्स होते हैं तो उन्होंने कितने रन्स किए थे, 190 रन्स किया था उन्होंने। पीपल चीयर्ड फॉर देम, जो लोग थे वो ऑडियंस जो थी वो क्या कर रही थी, जो स्पेक्टेटर्स थे, यहाँ पर तो आप ऑडियंस नहीं स्पेक्टेटर्स कहोगे, ओके, वो क्या कर रही थी, उनको चीयर कर रही थी, मतलब कि वो उनको चिल्ला कर इनकरेज कर रहे थे। देन फॉलोड अ ब्रेक, उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्रेक होता है। सो रवि एंड कृष्णन मूव टुवर्ड्स द कैफेटेरिया। रवि सेड लेट्स हैव सम स्नैक्स। कृष्णन ही सेड ओह द पीपल आर रशिंग टू द कैफेटेरिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो रवि है वो बोलता है कि जो रवि और कृष्णन है वो क्या करते हैं, कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। रवि बोलता है चलो हम कुछ स्नैक्स खाते हैं, कुछ खाते हैं, लंच हो रखा है, मतलब ब्रेक हो रखा है तो हम कुछ खा पी लेते हैं, ओके।
और फिर वो क्या बोलता है कृष्णन कि अरे बाबा लोग तो इतनी तेज़ी से उधर जा रहे हैं, किसकी तरफ, कैफेटेरिया की तरफ। लोगों की भीड़ ना बहुत तेज़ी से दौड़ रही है, बड़ा भीड़ भाड़ था वो। उसके बाद ये दोनों दोस्त रवि एंड कृष्णन जाते हैं एंड देन दे बाउट 2 कैंस ऑफ ऑरेंज जूस। वो ऑरेंज जूस खरीदते हैं एंड अ बिग पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न। सून द मैच स्टार्टेड अगेन। और वो एक बड़ा सा पैकेट खरीदते हैं पॉपकॉर्न का एंड देन फिर वो मैच देखने के लिए वापस फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर मैच स्टार्ट होती है। हाँ, ये हमारा ना पता नहीं क्यों ये ट्रेडिशन सा बन गया, अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो पॉपकॉर्न खाओ, अगर मूवी देखने जा रहे हो तो पॉपकॉर्न खाना। ये पता नहीं लोगों ने एक वो बना रखा है, ट्रेडिशन से बना रखा है। आप कुछ और भी खा सकते हो बट वहाँ पर का ये चीज़ फेमस हो रखा है। मैच देखने वक्त, मूवीज़ देखने वक्त लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, नहीं? आप मेरी बात से अग्री करते हो देन कमेंट मी डाउन, यस आई अग्री। ओके, आई वाज जस्ट जोकिंग। Now come to the next paragraph. Now it was time for the Indian team to bat. अब किसकी टाइम थी? इंडियन टीम की बारी थी अब वो बैटिंग करने को। शिखर धवन एंड रोहित शर्मा started their innings. The Indian supporters cheered loud and clear. Mitchell Starc from the Australian team started bowling. Shikhar hit the ball straight and it crossed the boundary line. अब इंडियन टीम की बारी थी जिसमें से कौन आते हैं? शिखर धवन एंड रोहित शर्मा खेलते हैं। ओके, दे स्टार्टेड बैटिंग। ओके, हाँ। और फिर जो इंडियन की टीम की जो सपोर्टर थी, वो जो जो लोग इसको चीयर कर रहे थे, वो बड़ा ज़ोर से चीयर करते हुए चिल्लाते हैं। ओके, और जो है माइकल स्टार्क है जो ऑस्ट्रेलियन टीम का है प्लेयर, वो क्या करता है? बॉलिंग करता है। बैटिंग कौन कर रहे हैं? शिखर धवन एंड रोहित शर्मा है बैटिंग के लिए। बॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम से है कौन? माइकल स्टार्क। फाइन, ये। और जो शिखर है उसने बॉल को इतना तेज़ी से हिट किया, एकदम स्ट्रेट हिट किया उन्होंने, एकदम सामने की तरफ, और जिसके कारण वो क्या होती है? बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है। द अंपायर इंडिकेटेड दैट इट वॉज अ 4। जो अंपायर होता है, जैसे मैंने बता रखा था ना, वो ऐसा पर्सन जो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है मैच को, ताकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक ना हो। ओके, और वो ये जस्टिफाई करता है कि कौन सा रन 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, इस तरह से जो चीज़ जो खड़े होकर बताने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड अंपायर। और फिर अंपायर क्या उसको कर देता है? इंडिकेट करता है कि ये 4 था। ओके, इंडिया मेड अ गुड स्टार्ट। और इस तरह से इंडिया ने बड़ा अच्छा ये शुरुआत किया है ना, 4 रन से स्टार्ट किया उन्होंने। फाइन, ओके। एज यू कैन सी द क्राउड ऑफ द पीपल, सी हियर द पीपल्स दे आर चियरिंग देयर टीम, है ना, लोगों की भीड़ है। देखो ये जो इसने ले रखा, दिस इज कॉल्ड बैनर। ओके, सॉरी, है ना, दिस इज योर बैनर। ओके, so now come to the next paragraph, sorry, not passage, where we are, yes. The two batsmen scored 170 together and then suddenly Rohit was out. Then came Suresh Raina. ये दो बैट्समैन थे, उन्होंने कितने रन इकट्ठे किए? 170 रन्स। ओके, कौन कौन? शिखर धवन एंड रोहित शर्मा ने 170 रन्स कलेक्ट किया। एंड देन रोहित जो है फिर वो आउट, मतलब वो आउट हो जाता है। ओके, देन उसके जगह पर कौन आता है? सुरेश रैना आते हैं। ही ऑल्सो कुड नॉट स्टे ऑन द पिच फॉर लॉन्ग एंड वॉज रन आउट द 15th ओवर। सुरेश रैना भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और वो 15th ओवर में ही वो आउट हो जाते हैं। द नेक्स्ट बैट्समैन वॉज MS धोनी। धोनी एंड धवन टुक द स्कोर टू 181 इन द 19th ओवर। उसके बाद जो दो नेक्स्ट जो बैट्समैन होते हैं वो होते हैं MS धोनी एंड धवन होते हैं। ये दोनों फिर बैटिंग करते हैं और इन लोगों ने 19th ओवर में कितने रन्स अर्न किए? 181। द गेम वॉज एट द पीक ऑफ एक्साइटमेंट। और जो गेम थी बड़ा एक्साइटमेंट सा हो रखा था, क्योंकि अब लोगों को लगा था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने रन बनेंगे, बड़ा लोग एकदम एक्साइटेड थे जानने को। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज नंबर 114, पेज नंबर का लास्ट पैराग्राफ ही है, नॉट ऑफ द चैप्टर। ओके, द लास्ट ओवर वॉज गिवन टू माइकल जॉनसन। अब उसके बाद जो लास्ट ओवर है वो किसको दिया गया? माइकल जॉनसन को। हिज फर्स्ट बॉल वॉज हिट हाई बाय धवन। जो बॉलिंग करता है लास्ट वो कौन रहता है? माइकल जॉनसन, जिसके बॉल को हिट कौन करता है? धवन। ओके, और अरोन फिंच ट्राई टू कैच इट बट ही स्लिप। अब वो जो अरोन फिंच है, जो कैप्टन थे इस टीम के, वो क्या करते हैं? ट्राई करना चाहते हैं उसको, ये बॉल को कैच करना, बट वो क्या करते हैं? पकड़ नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली, एंड ही वॉज स्लिप्ड, और वो स्लिप करके गिर जाते हैं। द मैच केम टू हॉल्ट एंड ऑल द, इस तरह से मैच जो है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 115।
और जो फिंच गिर जाते हैं ना, उसके लिए लोग क्या करते हैं, ऑल द प्लेयर्स रश टू हिज हेल्प। मैच वहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है और सारे प्लेयर्स दौड़ जाते हैं उससे हेल्प करने के लिए। अब कोई अगर आपकी टीम से, आपकी टीम ना भी हो, आप दूसरे टीम से भी हो, कोई अगर गिर जाता है तो आप उसकी हेल्प करने दौड़ोगे ना, फिर तो क्या होता है, लोग सब जो भी आप खेल रहे हो उसे छोड़ छाड़ के दौड़ जाते हो ना उसके हेल्प करने को। इसी तरह से सारे जो प्लेयर्स थे वो दौड़ चलते हैं किसे हेल्प करने को, फिंच को। They gathered around him and helped him stretch his legs until medical help arrived. Soon all was fine. उसके बाद सारे लोग क्या करते हैं, वो वहाँ भीड़ इकट्ठे करते हैं और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसके लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, कुछ हेल्प, जब तक कि उनको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। जो प्लेयर्स अगर वहाँ पे उनको जो चोट वोट लगती है, इंजर्ड होते हैं ना, तो उनके लिए मेडिकल वहाँ पर अवेलेबल होती है। ओके, तुरंत उनको मेडिकल हेल्प दी जाती है, फिर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। Now 10 runs were needed from 5 balls. Dhoni hit the second ball for a 4. India now needed 6 runs from 3 balls. उसके बाद जो फिर से वो मैच स्टार्ट होती है, खेलना शुरू होती है मैच। एंड देन जो धोनी है वो वहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं। 10 रन्स उनको ज़रूरत थी 5 बॉल्स में, ओके, उनको जीतने के लिए। तो धोनी क्या करते हैं, वो जो सेकंड बॉल को हिट करते हैं और वो क्या लेते हैं, 4 रन्स अर्न करते हैं। इंडिया नाउ नीडेड 6 रन्स। अब उनको 4 रन्स उन्होंने अर्न कर लिए, तब कितने बचे, 6 ना, 10 में 4 कर लिया उन्होंने, अब 6 रन्स बाकी थे जीतने के लिए फ्रॉम 3 बॉल्स। There were no runs from the next 2 balls. There was absolute silence in the stadium. The spectators were waiting for a nail-biting finish. The last ball of Johnson was a full toss. अब इस तरह से जो लोग थे ना, सारे लोग देखने को ये थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा वाला था उन लोगों के अंदर। पता नहीं है कि अरे अब क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। हमारी जो हार्ट बीट है ना वो तेज़ हो जाती है एट दैट मोमेंट, राइट। उसके बाद सारे जो स्पेक्टेटर्स थे वो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। फिर जो लास्ट बॉल होती जॉनसन की ना, जॉनसन लास्ट बॉलिंग करते हैं, धोनी हिट हिट हार्ड एंड इट वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम। और धोनी उससे बॉल को ऐसा हिट करते हैं कि वो स्टेडियम के बाहर चली जाती है। इट वॉज 6 एंड दैट वॉज 6 रन्स उन्होंने अर्न कर लिया, राइट। हाँ, 4 तो ऑलरेडी किया था उन्होंने पहले, एंड देन फिर 6 किया, देन इट वॉज 10 रन्स जो उनको चाहिए थी, 10 रन्स। India had won the match. Krishnan said, "What a thrilling match it was." Ravi nodded and smiled. Indeed, it was. उसके बाद इंडिया जो है वो मैच जीत जाती है और ये दोनों बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये इंडियन टीम से थे और हमें भी खुशी मिल रही है क्योंकि हम भी इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं ना, या। देन कृष्णन जो है वो चिल्लाता है, वो बोलता है, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, वाह कितना एक्साइटिंग मैच था ये। रवि बोलता है, नॉडेड एंड स्माइल, वो मुस्कुराते हुए सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ ये तो था, वाकई ये मैच था थ्रिलिंग। So that was the story and I hope you would have enjoyed the story. How was the story? Have you enjoyed or not? I enjoyed very much. मैंने बड़ा enjoy किया, मुझे मज़ा आया। अगर आपने भी enjoy किया then comment में down. अब कहोगे मैम सारे चीज़ बोल रहे हो, अब comment में down, comment में down. भाई अब क्या करूँ, बातें तो कॉल पे कर नहीं सकते हम, तो कमेंट में ही बातें कर सकते हैं ना। Okay, so just mention your views in the comment box. So that's all for today. Have a good day. Bye bye. If you have liked the way of my teaching or if my videos are helpful for you, then just do subscribe my channel and hit the like button. So have a good day. Bye bye. Thank you.